वेलकम बैक। 1 घंटा का सेशन हो चुका था। अब वापस हम लोग मैम से बात करेंगे, मैम विद मिसेस पायल वर्मा। अगर आपने अभी तक वो सेशन नहीं देखा तो प्लीज़ जाके पहले हमारा पार्ट 1 देखिए, फिर ये वाला सेशन कंटिन्यू करते हैं। वापस से हम मिसेस पायल वर्मा के साथ बात करेंगे। शी इज़ मिसेस वेस्ट बंगाल, अ प्राणिक हीलर एंड अ पैजेंट कोच. So she will be there with us to share her experience and stories. We have already done part 1 and it already posted in our IGTV video. So we will talk to her once again, chat and share her stories and get experiences and inspired from us. So welcome back, ma'am. Yes, well, thank you so much. So, as I told you, We were talking about pranic healing. yes. So, in short, what we do is that we transfer energy from the healer to the patient, and it is also based on the process that every body can recover itself. So, it is on the process of self recovery. Every body can recover itself. Only thing that a healer does is healer will give in some extra prana to the area जहाँ प्राण शक्ति कम है, so that it can self heal. प्राणा देके उस एरिया को एक्सेलरेट करता है उसका हीलिंग प्रोसेस. दिस इज द वर्क ऑफ अ हीलर. मैम एक और क्वेश्चन है बाय चौधरी मयंक. मैम, हाउ डू वी गाइड आवर यंगर्स टू अ good path? How do we guide our youngers? The youngsters. Okay, so I think the best way, I personally feel, is that you can only guide someone if you are practicing what you preach. You have to be someone practicing something, और जब आप वो चीज किसी और के सामने करते हो तो आप खुद एक सीख बन जाते हो दूसरों के लिए. So if you want the youngsters to learn something, you be the person जो आप काम करोगे, आपको देख के 4 यंगस्टर्स वही सीखेंगे और वही करेंगे. So वही चीज कीजिए जो आप चाहते हैं कि यंगस्टर्स सीखें आपसे. So you be the change first. So I cannot go and change 20 lakh youngsters in one day, right? But at least Yes, I can begin. The charity begins at home. So I should see that I have 2 young teenagers, right? My daughter is 14 plus, my son is 18 plus. So if I do not practice what I preach, I cannot do anything with the youngsters. Yes. So if you want to bring about some change in the youngsters, you practice what you want them to do. Excuse me. So this is what I feel and this is what I do. And मुझे देख के ऐसा लगता है आप जो करेंगे आपको देख के यंगस्टर्स आपको देख के वही कॉपी करने की कोशिश करेंगे. So you do exactly what you want them to do. You be like the mirror. They will, अगर मेरे को अगर कोई बड़ा होगा वो जो करेगा जो चाहता है हम करें तो फिर आई विल लुक अप टू हिम, तो फिर हम भी वही करेंगे. Absolutely. So ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बोल कुछ रही हूँ, सोच कुछ रही हूँ, कर कुछ रही हूँ. तो फिर जो यंगस्टर्स है वो बोलेंगे आपको तो पता ही नहीं आप कर क्या रहे हो. लेकिन जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं सोच रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ, अगर सब एक जैसा है और वो एथिकल है, और ये मैं 1 दिन 2 दिन नहीं, अगर ये मैं प्रॉपरली पैटर्न वे में कंटिन्यूअसली करती हूँ, तो मेरे एटलीस्ट मेरे आसपास जितने यंगस्टर्स होंगे वो वही चीज सीखेंगे और वही प्रैक्टिस करेंगे. दैट इज व्हाट आई फील. ट्रू मैम. मैम आप इतनी ज्यादा फैशनेबल है और आप इतनी ब्यूटीफुल है. ओह थैंक यू. आई टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट. मैम दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट. आपका स्किन कितना ग्लो कर रहा है. ओह थैंक यू सो मैम मच. व्हाट इज योर डेली स्किन केयर रूटीन? Oh, my daily skincare routine is actually I drink a lot of water. So I'm basically I believe in water therapy. So I drink a lot of water, and my daily skin routine would be that one is drinking a lot of water, and second is no makeup. And third is that I keep my skin hydrated,
And fourth most important is that I try to smile most of the time. In that, because I know when you smile, you generate You look certain, beautiful. you always, so this is one curve that will always everyone look beautiful. Hmm. So other than that, I don't do too much on my skin because maybe it's genetic. I'm blessed with a good skin thanks to my mother, and I I just keep it clean. I wash it with a lot of water throughout the day, and I'm a no makeup person. You can still see that I'm not with any makeup on. Yes, So I'm basically a no makeup person. I don't like putting makeup on my skin. So, and I let my Hmm. skin breathe. And of course, stay happy. So if you're happy, you'll have a different kind of glow on your face. Happy and positive. True, ma'am. So in my daily Ma'am, routine, this is my daily regime. I actually follow all these things. मैम वो effective भी है. Yes, and drink a lot of water. My suggestion is drink a lot of water. At least 4 liters of water. मैम अब थोड़ा सा fun segment करते हैं. Sure, I would sure. like to play a game with you. Sure, I would love to. इसमें basically this is a would you rather questions. So I will give you like situation कि आप ये करोगे या वो करोगे. Done. It's basically your fashion related because you know you're like the fashion diva. Okay. So the you know yes ma'am. Sure. I'm game. I'm ready. Yes ma'am. तो हम लोग का मेरा first question है कि आप wear heels that are ugly but comfortable or wear heels that are very gorgeous but very uncomfortable. How do I answer it? Ma'am, would you rather आप क्या do you want to wear a heel which is very comfortable but very ugly, or Very a heel which is very gorgeous, very ugly, or a heel which is very gorgeous but very uncomfortable? You will get blisters and all Well, if I you will wear think it. keeping my profession in mind, I'll have to go with the second option. I cannot wear something which is ugly. So I will have to torture myself for a couple of hours and wear the beautiful one. क्या करे, दिखता है हम लोग को अपीयरेंस भी इम्पोर्टेंट है आपका लाइन में तो मुझे पता ना, क्योंकि वो वैसी हील मुझे 2-3 घंटे ही पहननी पड़ेगी. तो आई हाँ. विल रादर गो फॉर द सेकंड ऑप्शन, द ब्यूटीफुल हील व्हिच इज अनकंफर्टेबल. हाँ बट ठीक है. Ma'am, would you rather wear a velvet tracksuit with bling every day for a year, or wear a I Love Bombay T-shirt every day for a year? I love Bombay. Bombay T-shirt every day for a year, or velvet tracksuit with bling every day for a year? I think I love Mumbai. Ma'am, would you rather be undressed for an event or overdressed for an event? So I lost your voice. Ma'am, would you rather be underdressed for an event or overdressed for an event? I think underdressed, overdressed would be better because I can still handle that better. I'll somehow manage. So overdressed is okay. Confidence तो रहेगा. हाँ, underdressed में तो confidence तो चला जाएगा. Underdressed is dangerous. Ma'am, would you rather have an unlimited supply of perfect white T-shirts or perfect black dress? Black. Unlimited supply. Black. Anytime black. I'm the woman in black. मैम एक्चुअली ब्लैक सूट करता है सबको, सब पे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है ब्लैक पहना हुआ. Anytime I would love to have. I have a wardrobe of black stuff. Ma'am, would you rather wear non-prescribed glasses as a fashion statement or wear sunglasses at night as a fashion statement? Come again? I didn't get your question. Wear prescribed? Ma'am, would you rather non-prescribed, मतलब चश्मा नहीं है, पावर नहीं है, बट फिर भी चश्मा पहनोगे as a fashion statement, या फिर रात में sunglasses पहनोगे आप as a fashion statement? नहीं, the first one. A non-prescribed one? Yeah. No sunglasses at night. I find that very funny. नहीं. No, I'm not that. Ma'am, it's very uncomfortable also. No, but then that's quite trendy, huh? People can carry it very well. Men, I'll feel funny. Ma'am, would you rather wear yoga pants every day or wear jeans every single day? Yoga pants. Anytime. Yoga pants every day. Comfort for me means a lot. And for a year, so it's a long time.
So Yeah, comfort comes no first. jeans, no jeans. Ma'am, when people look at you, would you rather have them think that you are naturally beautiful or incredibly stylish? Naturally beautiful. Which you are. Oh, thank Moving on. you. Thank you so much. Ma'am, would you rather accidentally wax off your eyebrows or never wear lipstick again? Never wear lipstick again. I can't wax my Have ba- eyebrows. I would rather have my वो eyebrows. वो Please. वो I सनग्लासेस से ज्यादा फनी लगेगा आईब्रोज yes, नहीं है. because I can still do without a lipstick. I'm not as I told you, I'm a no makeup person. तो नहीं मिलेगी lipstick मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. I'm okay. I'll do with a lip balm. चलेगा. हाँ, But not without a आईब्रो चाहिए. eyebrow नहीं. Yeah, so I can do without a lipstick. No problem. Ma'am, would you rather never use foundation again or never paint your nails again? Never use foundation. You are really a no makeup person. Yeah, and I love nail paints, but so I would not. Nail grooming is also important. I love grooming my nails. So I'll do without foundation. I don't need it. Ma'am, would you rather apply lipstick as eyeliner or apply eyeliner as lipstick? Eyeliner, I would rather apply eyeliner as lipstick. Yeah. Eyeliner as lipstick. Yeah. I'm very fond of why? Because Black. yeah, I like I've never tried this, but I have been telling my daughter that I'm going to purchase a black lipstick. I want to try it once. Hmm. So I don't know how it's going to look, but I'm going to try that. It is घर पे पहन के तो घूम लूंगी. I'll try. Ma'am, I think ma'am, I have seen you on Instagram. You can pull off anything. Oh really? Oh my God! Thank you, thank you. So I'll try to pull off the black lipstick also. So and post it on Instagram. Yeah, so I will not actually mess with my eyebrows because black eyebrows don't look good on me. I rather go with a black lip rather than a black eyebrow. Ma'am, would you rather always have to sleep with makeup on or never wear makeup again? This is a very easy for you. Never wear makeup. Never wear makeup. I'm no problem. I never wear Would you rather have आपको तो मेकअप का शौक ही नहीं, वो अब समझ में आ गया. इतना क्वेश्चंस वेस्ट है. नहीं ऐसा नहीं. Ma'am, would you rather have a very dry skin or very oily skin? And you can't treat them. Like अगर dry है तो आप क्रीम लगा ठीक नहीं कर पाओगे. एकदम extreme है. Oily skin. Oily? Yeah. Ma'am, would you rather smash your eyeshadow palette or break your favorite lipstick? Ma'am, let's switch the eyeshadow palette with nail polish. I think you will relate that even much. Even with lipstick, I think eyeshadow palette I can smash it off, but lipstick फिर भी कभी-कभी चाहिए रहती है. और अगर nail polish और lipstick है तो? I'll smash my lipstick. Nail polish चाहिए. Yeah, nail polish रहेगी. That's one thing that I love. ठीक. Ma'am, would you rather have a lifetime supply of lipstick or lifetime supply of nail polish? इसमें eyeshadow का बड़ा nail polish देंगे. Nail polish, anytime. आपका favorite color कौन सा? Like nails, आपको ज़्यादा कौन सा color अच्छा लगता है paint करना? I love glittered nail paints. Anything in glitter I love. अभी भी मेरे पाँव पे जो मैंने लगाई हुई है, that's a glitter silver. Glitter अच्छा लगता है, वो trendy हुई अभी बहुत. Yeah, so you know, अगर मैं कई बार कोई कलर नहीं भी लगाती तो I just glitter my nails and I go to an event. से अगर मैंने नहीं पेंट किया हुआ है, I apply glitter and I go to the events. So that also looks good. हाँ, it looks good. So, Ma'am, now it's like a never have I ever segment. हम आपको कोई statement देंगे, and then you will have to say कि आपने वो किया है कि आपने नहीं किया. Okay, all right. Okay. All right. So never have I ever cut my own hairs. No, I've cut my hair. You have cut your own hair? Yeah. I've tried. I messed it up. I messed it. कैसा mess up था वो? I सामने से काट दिए थे.
So I messed it up. बैंग वो सब बैंक ही ट्राई करता है काटने का कि बैंग्स काट के देखते कैसा लगता है. I was very small and I don't know what I did with my hair and I was like crying after that. ये क्या कर दिया मैंने, ये क्या कर दिया. So I tried it. आपने कभी अपनी डॉटर का हेयर काटा है? हाँ, काटा. उसका भी मैसअप था कि वो नहीं. By that time I was trained. So मैंने अपने बेटे का भी ट्रिमिंग किया हुआ है. You know the side bangs and all that. By now my hand is much more better. It's a mother's hand. When I did mine, I was like a child. So मैंने बहुत बार मैम नेवर हैव आई एवर लेफ्ट द हाउस विद अ नोटिसेबल फाउंडेशन लगा रहे हैं आप, ऐसे रह गया फाउंडेशन और वैसे ही चले गए. I lost your voice. क्या बोला आपने? नेवर हैव आई एवर लेफ्ट द हाउस विद अ फाउंडेशन लाइन, जैसे फाउंडेशन लगा दो वैसे लग रह जाता है लाइन और फिर वैसे ही चले गए इवेंट में. मैं मेकअप ही नहीं करता हूँ. I hardly even for my events I generally carry a no makeup look. So मेरे लिए ये problem कभी it's never happened. मैम हैव यू एवर ब्रॉट समथिंग इन इम्पल्स देन रिग्रेटेड आफ्टरवर्ड्स कि क्या खरीद लिया? Yeah. Number of times. ये तो बहुत होता है कि जाते हैं तो कुछ भी ले लेते कर ले, ये तो नहीं लेना चाहिए. It happens mostly with my shoes and my clothes. बहुत बार. This is very common with me. Ma'am, have you ever brought something but never wore it? Yes. Many. मैम आई हैव लाइक अ वन पीस, हम 3 साल से राइट मोमेंट का वेट कर रहे हैं उसको पहनने के लिए. वो राइट मोमेंट आ नहीं पाया है. वो इतना अच्छा था कि हम एक राइट मोमेंट का वेट करेंगे. राइट मोमेंट कभी नहीं आएगा. अभी पहन लो. कोरोना है ना, अभी घर में पहन के घूमो. राइट मोमेंट की वेट मत करो, जस्ट वेयर इट. बट मेरे ऐसे बहुत से जो मैंने अभी तक नहीं पहने हैं. वो हर बार मेरे को लगता है अरे ये तो पहना ही नहीं, चलो इसको निकाल के पहना जाए. मेरे पास खजाना है ऐसे कपड़ों का. मैम आप ये गेम है, इसका नाम है 5 सेकंड समरी. ओके, इसमें बेसिकली हम आपको एक मूवी का प्लॉट बताएंगे, एक 1 लाइन और 2 लाइन, विदाउट मेंशनिंग द कैरेक्टर्स नेम और द सेलिब्रिटीज नेम जो उस मूवी में है, एंड यू विल हैव टू गेस द मूवी. I'll try. I'm very bad with names. I'll try. मैम आई थिंक यू विल गेट इट, बट फिर भी Okay. एक सिंपल सा देते पहले कि a huge joint family spends depends and take their life decisions asking a doll. एक सेकेंड वापस से. A huge joint family depend and takes their life decisions asking a dog called Tuffy. Ma'am, Tuffy rings a bell. Yeah, Tuffy rings a bell, but I'm not remembering the thank you. नहीं. No. मैम Okay, हम आपके नहीं. माधुरी दीक्षित. हाँ. हम आपके हैं कौन? हम आपके हैं कौन? Okay. Yes, वो that dog. They finally get back together when Tuffy वो letter दे देता है. Tuffy, हम आपके हैं. Tuffy के कारण भी they get back together. Yes. हम आपके हैं कौन? एक और है, एक ऐसी मूवी जिसकी आइकॉनिक लाइन ऑफ अ फादर इज सेइंग आउ टू पिजन एंड जाओ टू अ डॉटर. अरे शाहरुख खान एंड दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे. Yes ma'am. DDLJ. Ma'am, see you are very good at this. अरे मैंने कुछ दिन पहले ही देखी है. DDLJ? हाँ, वापस देखी. मैंने कहा बोर हो रहे थे तो आई जस्ट ऐसे चलो ये पिक्चर वापस देखी जाए. So I watched that movie, इसलिए मुझे अभी याद. How he was doing. That is an iconic movie. Yeah, it's an iconic movie. Anytime. मैम एक टिपिकल फादर को अपनी बेटी को प्यार एक्सेप्ट करने के लिए बेटी को मरना पड़ा. एक टिपिकल फादर को अपनी बेटी का प्यार एक्सेप्ट करने के लिए उस बेटी को सुसाइड करना पड़ा. ये अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान एंड ऐश्वर्या राय. एकदम याद नहीं आ रहा मेरे को नाम. Violin, he plays a violin.
यस मैम, शाहरुख खान। एकदम पूरा प्लॉट बता दिया आपको। अरे बस मूवी नहीं याद आ रहा। मूवी याद नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, सॉरी। मोहब्बतें। ओह माय गॉड यार, मोहब्बत है, मोहब्बतें। मोहब्बत है, एकदम एकदम याद नहीं था, एकदम याद नहीं था। आपको पूरा मूवी याद आ गया था, हाँ वो हाँ, नाम नहीं आता तो मुझे टेस्ट हो जाता है। या सो इट्स लाइक या मोहब्बत है, राइट राइट राइट। बते। एक ऐसी मूवी जो बहुत संस्कारी होने के बाद भी बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ देखने से डरते हैं कि हम नहीं देखेंगे पेरेंट्स के साथ वो मूवी। बहुत संस्कारी है वो फिर भी। आई डोंट नो। मैम इट्स बिकॉज कि वो मूवी में ऐसा दिखाता है कि कि जो पेरेंट्स है, जो बच्चे वो पेरेंट्स पे अत्याचार करते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं। बागबान, इसीलिए बागबान, बागबान। इसलिए फिर बच्चे नहीं देखना चाहते कि नहीं, ताना सुनने को बागबान, मिलेगा। वेरी ब्यूटीफुल मूवी, वेरी ब्यूटीफुल मूवी। हाँ, वो जनरली अनकंफर्टेबल हो जाते हो आप फैमिली में बैठ के देखने से ना, यू स्टार्ट फीलिंग ऑल तो बहुत अनकंफर्टेबल, संस्कारी है। स्पेशली हाँ इवन दो इट्स अ वेरी गुड मूवी। हाँ। राइट, करेक्ट, अग्री। मैम ये लास्ट है, एक ऐसी मूवी जहां एक एलियन हेल्प सम स्टूडेंट्स टू विन अ बास्केटबॉल मैच। वो जादू जादू जादू, वो धूप धूप। धूप, कोई मिल गया। यस मैम। ओके ओके। खाली मोहब्बतें आप नहीं बोल पाए, वही मोहब्बत आपको पता था, खाली वो हाँ, नाम नहीं मेरे याद को है नाम आपको याद मूवी नहीं आ का। रहा था यार, राइट राइट, ओह आई डिड वेल, गुड। मैम यू डिड अमेजिंग, वो वुडी राजा भी बहुत अच्छा किया आपने। नाइस नाइस नाइस। Yes, you're getting a reply. Shag, sugar fix is saying koi mil gaya. Yes, yes, I gave the answer. I gave the answer. Right, that's the answer. Koi mil gaya. मैम शुगर फिक्स ने एक और कुछ पूछा है मैम, हाउ टू ट्रीट एक्ने प्रोन स्किन। My God, you want beauty tips from me? Acne prone, I think the best thing would be that, see, I'm not a beautician, but what I feel is you have to keep your skin clean. आप जितना अपने स्किन को क्लीन रखोगे ना और अपने पोर्स को बंद रखोगे, सो जनरली यू शुड कीप इट क्लेंस्ड, toned, and hydrated, and not use a very greasy cream. तो आप देखेंगे आपका एक्ने। और एक और चीज है इंटरनली अपने आप को अच्छा रखने के लिए, डोंट टेक टू मच ऑफ स्ट्रेस। जितना आप स्ट्रेस लोगे ना उतना एक्ने बढ़ता है, दिस इज द टेंडेंसी ऑफ एक्ने। सो एक तो आप अपने आप को डिस्ट्रेस्ड रखो, एंड दूसरा अपने स्किन को जितना क्लीन, सो कीप वॉशिंग इट विद वाटर, दिन में 2-4 बार पानी से धोते रहिए, स्पेशली जब आप बाहर से आते हैं, जिससे कि डर्ट अक्यूमुलेट नहीं हो। आप रोज वाटर के आइस क्यूब्स बना के ना फ्रीजर में, अगर आपको ठंडा सूट करता है, दैट आफ्टर क्लेंजिंग योर फेस यू कैन अप्लाई द rose water ice cubes all over your skin to close the pores. You will see your acne will reduce. That's something very effective. Very effective. आई विल ट्राई दैट टू, मेरे खुद एक्ने प्रॉब्लम है। It's very effective. You can, if अगर आपको ठंडे से प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो फिर यू कैन डैब कॉटन को गीला करके रोज वाटर में फ्रीजर में थोड़ा रख के ना उसको डैब कीजिए, डैब इट ऑन योर स्किन सो दैट आपके पोर्स बंद हो जाए। इट विल रियली हेल्प, उससे आपका एक्ने काफी रिड्यूस होगा। दूसरा स्ट्रेस नहीं लेना है, जितना आप स्ट्रेस लोगे कि मेरा एक्ने है, मेरा एक्ने है, मेरा एक्ने है, एक्ने इंक्रीज ही करेगा, कम नहीं होगा। एंड ट्राई टू अवॉइड, ऑल्सो ट्राई टू अवॉइड टू मच ऑफ जंक फूड, टू मच ऑफ जंक, मैं ये नहीं बोली बंद कर दो, जंक फूड एंड ऑयली फूड, जितना आप कंट्रोल खाएंगे उतना आपका एक्ने प्रॉब्लम कंट्रोल में रहेगा। So basically, यस मैम, these वो precautions तो you सब take. सजेस्ट करते हैं कि हाँ, सब सजेस्ट कर दे थोड़ा Yes, तेला पला and, कम होना चाहिए। yeah, and have a lot of water so that your blood is constantly being cleansed. Your system is cleansed of toxins. तो जितना सिस्टम टॉक्सिन्स क्लीन रखेगा, टॉक्सिन से फ्री रहेगा, उतना आपका स्किन क्लियर रहेगा। मैम आपने एनिग्मा आपका जो इंस्टीट्यूशन है फॉर पैजेंट ग्रूमिंग फॉर ट्रेनिंग, तो व्हाट इंस्पायर्ड टू स्टार्ट दैट, स्टार्ट दैट इंस्टीट्यूशन। I have been training up candidates for many years now, and for the past, for a couple of years, I'm now also into pageant training, and but personality training I've been doing for many years. So I always wanted to have my own brand name, and finally I decided that I would come up with my brand, and eventually I came up 2 years back. I came up with Enigma. So it was
just technically मैंने नाम दिया है, but I have been doing this for many years now, and pageant grooming has been added to it in these few couple of years. But personality training, interview practice, all this stuff, how to groom yourself, how to present yourself, all this I have always been doing for a very long time. So Enigma Ma'am, happened about 2 years back. मैम इट्स गोइंग वेरी वेल एक्चुअली. हाँ, yeah, बहुत thank अच्छा you so रिस्पॉन्स भी much. मिल रहा है आपको उसको. Yeah, एंड thank इट्स अ you वेरी so गुड much. इनिशिएटिव. Yes, because Yes, ma'am. my intention is to not only train up candidates. I want them to grow up as healthy individuals. So I not only train them up professionally, just how to walk on the ramp, but I try to give them a holistic approach towards their life. So when they leave Enigma, they are much more balanced individuals as to when they come in. They are more confident, and even with pranic healing, I'm trying to do as much as I can through Enigma. So my intention is to spread my wings further. मैम जो यंग पीपल है जो मॉडल बनने का एस्पायर कर रहे हैं उनको आप क्या बोले जाएंगे टू मोटिवेट देम कि वो मॉडलिंग करियर में आए? Well, अगर आपका पैशन है तो डेफिनेटली परस्यू करो, बिकॉज दिस इंडस्ट्री इज वेरी डायनामिक और यहाँ हर समय नए फेसेस की जरूरत. वी ऑलवेज नीड न्यू फेसेस, and it is a very dynamic industry, but it has a lot of competition. So along with being dynamic, it is competitive. So my suggestion at the same time would be that please train up yourself professionally before you try to come into the mainstream industry, because then it will be easier for you to get work. So please, if it's I would say if it's your passion, please go ahead, because काम बहुत है और जरूरत भी है, लोगों की जरूरत भी है, न्यू फेसेस भी चाहिए, बट यू शुड नो द एग्जैक्ट द राइट वे टू अप्रोच. जैसे हम अगर आज आईपीएस एग्जाम में भी बैठते तो एक प्रोसीजर होता है ना, वैसे इस इंडस्ट्री में आने के लिए भी यू शुड नो द राइट वेज एंड मीन्स टू एंटर द इंडस्ट्री, which is so best would be to train up with a good institute, understand how to go about it, and then you get guided into the industry. So you can go, because there's a lot of work. ऐसा कुछ नहीं है कि काम नहीं है. आप कहीं भी कलकत्ता में कर सकते हो, कलकत्ता के बाहर जा सकते हो, बॉम्बे जा सकते हो, काम की कोई कमी नहीं है. मैम अभी एक और क्वेश्चन आ रहा है कि हाउ टू कंट्रोल एंगर इश्यूज. How to control anger issues is that so if you always remember one thing, I'm giving you one very simple tip. Just tell me one thing. जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, ये मैं आपसे पूछ रही हूँ. आप एक बार जस्ट इस बात पे सोच के देखिए, आपको आपका जवाब खुद ही मिल जाएगा. अगर आप बहुत गुस्सा हो किसी पे और आपके सामने आपने देखा कि आप उसको मारना चाह रहे हो, कुछ नहीं है, सामने गरम कोयले का एक टुकड़ा पड़ा हुआ है, आप उसको उठा के आपने उसी से उसे मारने की कोशिश की. आपने कोयला उठाया, गरम कोयला, और आपने उसको मारने की कोशिश की. आपने एक्चुअली गुस्सा किस पे निकालना था? जिस पे आप गुस्सा थे. लेकिन तकलीफ सबसे पहले किसको पहुंचेगी? जब आप गरम कोयला उठाते हो, खुद को. So anger is just like that. Anger is like it is like that hot coal, गरम कोयला, जिसको पहले आपको उठाना पड़ेगा. तो जब आप गुस्सा होते हो ना, तो जो आप अंदर ही अंदर जो घुटते रहते हो, सबसे पहला नुकसान आप अपने आप को पहुंचा रहे हो. तो जिस दिन आप ये समझ गए ना, आप नेक्स्ट टाइम गुस्सा करने से पहले 5 बार सोचोगे कि ये गुस्सा करने से मेरे अंदर की कितनी नर्व्स और सेल्स डैमेज होंगे. सो माय सजेशन वुड बी, हर बार मेरी ये स्टोरी याद कर लेना कि ये जो मैं गुस्सा करने जा रहा हूँ, ये एक्चुअली सबसे पहले मुझे हर्ट करेगा, उसके बाद ये जाके किसी और को हर्ट करेगा. सो प्लीज रिमेम्बर दिस स्टोरी, एंड आप देखेंगे कि नेक्स्ट टाइम जैसे गुस्सा आएगा ना, आपको याद आएगा, ओके पायल मैम ने ये बोला था, इट विल हिट यू. सो रिमेम्बर, गुस्सा ऐसी चीज है जो सबसे पहले आपको हानि पहुंचाती है, इसलिए गुस्सा जितना कम हो सके लाइफ में करो, क्योंकि एवरी टाइम यू गेट एंग्री यू डैमेज n number, more than 60,000 nerves in your body. So you are damaging your internal system first. दूसरे बंदे को तो आप फेंकोगे या कुछ बुरा बोलोगे, वो सुनेगा, 5 मिनट कल्पेगा और चलता बनेगा. लेकिन आपने उस 10 मिनट के गुस्से में अपने आप को इंटरनली कितनी हानि पहुंचाई है, उस पे जरा गौर करो.
So again the question comes back to self love. If you love yourself enough, you will want to get angry सबसे कम, because you मैम know. उसी पर ना काउंटर क्वेश्चन भी एक है कि व्हाट इफ यू आर हर्ट फ्रॉम योर लव्ड वंस, डिसअपॉइंटेड बाय देयर एक्शंस, तब आप क्या करेंगे? See, disappointment is again a situation. आप एक बात बताओ मेरे को, again this it's a counter question from my end. मैंने आपको आज एक जोक सुनाई, वेरी फनी जोक, आप हंसोगे? मैं कल फिर सेम ग्रुप से मिली, मैंने फिर वही जोक सुनाई, आप हंसोगे? शायद हंसोगे। मैं तीसरे कंसेक्यूटिव फिर सुनाऊं, आपको शायद आप बोलोगे यार क्या एक ही जोक आती है क्या, रोज एक ही जोक सुनाते हो आप, रोज ही मेरे को, आपको हंसी नहीं आएगी। सो माय पॉइंट इज दैट इफ समबडी इज हर्टिंग यू, आप अगर रोज हंस नहीं सकते हो एक सेम जोक पे, तो आप एक सेम सिचुएशन पे आप बार बार दुखी कैसे हो सकते हो? हम लोग बार बार कहते हैं उसने मुझे 5 साल पहले ये बोला था, 5 साल 15 साल आप अभी तक उसके ऊपर में लेके क्रिप कर रहे हो, वो तो करके भूल के चले गए, आप आज तक दुख मना रहे हो, तो दुखी कौन? दुखी तो आप हो रहे हो, हर्ट कौन हो रहा है? आप हो रहे हो। So ideally when you don't laugh at the same joke over and over again, I don't think you need to. So इसीलिए अगर सिचुएशन आती है ना, मेरा कहने का मतलब है कि अगर सिचुएशन आई, उस सिचुएशन में अगर आपने रिएक्ट कर भी दिया, अगर आप गुस्सा हो भी गए, ट्राई टू कम बैक टू योर नॉर्मल स्टेट जितना जल्दी हो सके, इंस्टेड ऑफ पुलिंग इट फॉर 1 month 2 month 1 year 2 year 5 years. उसमें तकलीफ दूसरे बंदे को नहीं होगी, उसमें तकलीफ आपको होगी। सो इसीलिए सिचुएशंस देखिए आएंगी, हम एक सोसाइटी में रहते हैं, हम अकेला जीवन नहीं बिता रहे हैं। लेट्स फेस फैक्ट्स हियर, यू आर लिविंग इन अ फैमिली एंड एवरीबडी इन द फैमिली हैज अ राइट ऑफ स्पीच, राइट ऑफ एक्शन, और उनको अधिकार है अपना व्यू पॉइंट रखने का, चाहे वो गुस्से में रखे चाहे हंस के रखे। आप उसे कैसे लेते हो वो आपका राइट है। अगले ने आपको गाली निकाली, आपने अगर नहीं ली तो सेंसिबल कौन? सेंसिबल आप। आज अगर मैं आपको बोलूं यूर अ डॉग, यू विल नॉट टर्न इनटू अ डॉग, बट यू विल गेट एंग्री। तुमने मुझे डॉग बोला, अरे बोला बट बने तो नहीं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट बोलने और समझने की ये जो गैप है, इसको फिल करो। किसी के बोलने से कुछ नहीं होता है जब तक आप उसको फील नहीं करते हो। तो अगर आपने किसी के कमेंट को पर्सनली नहीं लिया तो वो आपको हर्ट नहीं करेगा। और आपको ये समझ के चलना पड़ेगा कि आप अगर एक फैमिली में रह रहे हो तो हर समय लोग आपके पसंद के हिसाब से नहीं बोलेंगे। तो अगर वो आपका विपरीत बोल रहे हैं या आपके अगेंस्ट बोल रहे हैं या आपको डांट रहे हैं, आप सुन लीजिए। आपको जरूरी नहीं है कि आपको चिल्ला के बोलना है, आप सॉफ्टली ये बात बोल सकते हैं, आई एम सॉरी लेकिन मैं इससे अग्री नहीं करता, आई डिसएग्री, और आप वहां से चले जाइए। आपको किसने बोला कि खड़े होके वहां झगड़ा कीजिए? चॉइस आपके हाथ में है साक्षी, चॉइस इज इन माय हैंड कि मैं झगड़ा करूंगी या मैं वहां से चली जाऊंगी। अगर आप सेल्फ लव में बिलीव करते हैं तो यू विल डू द सेकंड ऑप्शन विच इज अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा एंड देन जस्ट मूव ऑफ। दूसरे वाले को सोचते रहने दो कि क्या बोला, क्योंकि आपको उस पे आप एक्ट करो, रिएक्ट मत करो। अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी एकदम कामली रखना चाहिए ताकि ये कहीं पे ये समझे। गेट मी द चार्जर। ये कहीं भी नहीं लिखा है कि अगर आप चिल्ला के बोलोगे तो ही आप राइट हो। आई थिंक द बेस्ट वे टू गेट योर पॉइंट अक्रॉस इज कि एक स्ट्रेट फेस रख के काम वे में अपनी बात बोल के निकल जाओ, सामने वाले को सोचने पे मजबूर कर दोगे। जरूरी नहीं अगर आपने अपनी वॉइस रेज की तो ही लोग आपकी बात सुनेंगे, उल्टा तब लोग आपकी बात नहीं सुनते, झगड़ा करते हैं। सो दैट इज हाउ यू हैव टू हैंडल इफ समबडी इज टेलिंग यू समथिंग। अगर आपने रिएक्ट कर भी दिया, ट्राई टू कम बैक टू योर नॉर्मल सेल्फ जितना जल्दी हो सके, बाउंस बैक। उसको लेके पकड़ के नहीं रहना। इसको हम लोग अपने टर्म्स में बोलते हैं लर्न हाउ टू लेट गो। लेट गो हुआ, आपने रिएक्ट किया, खत्म, कट इट,
End of the story, move on. Hmm. Do you understand? Yes, ma'am. So it is called the technique of how to let go. Hmm. Yeah, just a minute. Give me a minute. I'm just putting it on charge. Right? So it is called the concept of letting go. So my suggestion is let go करना सीखो लाइफ में. किसी चीज को पकड़ के रखने से कुछ नहीं मिलता. Hmm. हुआ, रिएक्ट किया, खत्म कहानी, मूव ऑन. सो जस्ट मूव ऑन. डोंट होल्ड ऑन टू इट. जितना आप होल्ड ऑन करोगे उतना आपको तकलीफ होगी. मैम, थैंक यू सो मच. आपने इतना टाइम निकाल के हमसे बात किया एंड Pleasure आपने is all mine. इतना इंस्पिरेशनल बात बोला, इतना मोटिवेशनल बात बोला आपने, जो सब एक्चुअली बहुत ज्यादा रिलेटेबल है और हम लोग सब उसको यूज कर सकते हैं वो चीजों को अपने लाइफ में, जो एकदम बहुत मिड हम लोग उसको रिलेट कर पा रहे हैं और हम लोग इनकलकेट कर सकते हैं. तो इतनी प्योर और इतनी अच्छी आपने मोटिवेशनल बात बोली. तो एक लास्ट खाली एक सबके जनरल मोटिवेशनल के लिए आप कुछ अगर बोल दें. मैं एक ही बात बोलूंगी कि लाइफ जो है ना वो कोरोना ने तो सिखा दिया है कि हमें क्या क्या नहीं करना है. करो ना. इसलिए दुखी मत हो, रो मत, चीजों पे क्रिप मत करो. लाइफ को अपना विजन, अपना जो मिशन इन लाइफ है और अपना एटीट्यूड इन लाइफ जो है ना उसे कंप्लेन से चेंज करके ग्रैटिट्यूड में बदलो. लुक एट योर लाइफ एज अ ब्लेसिंग. If you are alive today, definitely you have done some good, you have generated some good deeds in some lifetime, so you are safe because so many people are losing their lives. So please be grateful for what you have in life. The more you are grateful, the happier you will be, and you will find lesser problems in life. और किसको एक हैप्पी और लेसर प्रॉब्लम्स वाली लाइफ नहीं चाहिए, हम सबको चाहिए. तो चेंज योर एटीट्यूड फ्रॉम ग्रीफ टू ग्रैटिट्यूड. ये मैं हमेशा बोलती हूँ. चेंज योर एटीट्यूड फ्रॉम ग्रीफ टू ग्रैटिट्यूड एंड लेट योर जर्नी बी ग्रीफ पीछे छोड़ो, ग्रैटिट्यूड को अपनाओ. Ma'am, that was so nice of you. It was a really great session. I really enjoyed talking to you a lot. Thank you so It much. was so motivating. Thank you so much. It's been a pleasure being here, and I hope that everyone watching this live and all the people who will watch it later will get some will enjoy our conversation and will get some motivation. I just hope and pray. And one last wish: please stay safe, take all precautions, and don't be careless. Corona is still there. And at any point of time, if you ever want any kind of help from me, this is Payal Verma. You can always connect with me on my Facebook or my Insta handle. Send me a message. I will connect with you. I'm always there for any kind of help that you want. This is for all the viewers and you and the entire team of Shakti. Thank you, ma'am. So thank you once again for having me over Shakti, Apni Shakti. And best wishes to all the people जो मेरे बाद आने वाले हैं आपके live पे. You guys were amazing, and I'm going to tell everyone that Shakti rocks. Thank you, ma'am. So thank you so much. Bye, ma'am. Okay, bye-bye. I'll be leaving, right? Yes, ma'am. Thank you. Bye-bye. Bye. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर लाइव सेशन. ये हमारा पार्ट 2 था. हमारा पार्ट 1 भी आईजीटी में पोस्ट है, तो प्लीज उसे जाके चेकआउट करेगा. एंड स्टे ट्यून फॉर व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट. इसके बाद भी हम लोग ऐसे ही इंस्पिरेशन लोगों को लेके आएंगे, तो अपनी स्टोरी शेयर करेंगे और अपने फन कॉन्वर्सेशन करेंगे, ताकि आपको भी अच्छा लगे और हम लोग को भी अच्छा लगेगा. सो डू वॉच आवर सेशंस and stay positive and spread happiness. Thank you.